Okay, before starting the today's topic, first of all, we will discuss couple of things. As you can see my screen, I have created all the assignments, whatever we have in our syllabus. Okay, these are the assignments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and below that numbering has gone wrong. But after that 10, 11, 12, like that, we have total around 15 assignments, okay, which we have to complete. And out of that, okay, I have created all the assignments at a time only, so that sometimes I say that I will create an assignment but I miss it sometimes, so that's why I have created all the assignments. Out of this bank account we have completed, okay. Student database we have completed, inheritance, the vehicle program we have completed, complex number, operator overloading, okay, that we have completed. So till 4 we have completed all the assignments from group A, right? Can anybody confirm? Anyone? Anybody? Yes, sir. Great. Yes, sir. Till 4, what I'm expecting is previously you have submitted all the assignments in practice section. Yeah, I have created those programs, those assignments here in the practice session, and you have submitted those here. But now I want you to submit all those assignments in this section, group A. But this time the formatting will be a bit different. So what I want is you write a program, okay? You generate proper output. For example, if it is a menu driven program, for example, if you see here, operator overloading, you have to perform plus, minus, okay, all those operations. Or here also, in case of vehicle program, at the end we have four leaf nodes. That means Audi, Ford, then again two wheelers, two different companies. So we are accepting instance, object, or values of all these four companies. So you have to accept that data and display data. So basically, what all functions you have written in a program, you have to execute all those functions and you have to generate an output. Later on, you have to copy that program as well as output. Okay, program plus output. You have to copy that into a Word file, and then you submit that Word file. You upload that complete Word file here as an assignment. So instead of submitting again, you all can change this. I haven't revoked the rights. So here I have received different types of formats, wherein sometimes I have just links, and sometimes I have photos, sometimes I have PDF, docx. So instead of that, let's make it common. We will create a docx file. Okay. Again, Word file. Okay. In Word file, before pasting all this program plus output, आपको क्या करना है? Program और output दोनों paste करना है उस Word file में. But before pasting all this, you write your roll number, assignment number, and assignment name, which you can copy from here, from assignment itself. So say if it is roll number one, division, name, everything. Below that, this problem statement, assignment number one, problem statement, and then all the assignment. ठीक है. This is the regarding the submission of programs on the classroom. Any doubt in this? किसी को कोई No, query है? सर याची ड्यू काय आहे? ड्यू आपण असं ॲज सच काही ठेवलेलं नाहीये, पण जेवढं तुम्ही अर्लिएस्ट कराल तुम्ही कम्फर्ट झोन मध्ये राहाल, बिकॉज लेटर ऑन यू हॅव टू स्टार्ट रायटिंग ऑल्सो नाव. ठीक आहे. यू विल बी गेटिंग सम रायटअप्स, आणि मग ते रायटअप्स तुम्हाला परत लिहायचे. काही तुमच्या दुसरे जे आहे लास्ट फोर्थ बॅच त्याला आलं पण असेल, तर आपण ते रायटअपचं पण सांगणार आहोत. सर टोटल रायटअप्स किती आहेत? टोटल रायटअप्स आपले आपण जेवढे आता असाइनमेंट दिलेले ते सगळेच करणार आहे आपण. म्हणजे 15 आहेत हे.
असाइनमेंट्स आणि सॉरी 15 असाइनमेंट्स आहेत, त्यातली फक्त 12th असाइनमेंट नाही केली आपण, बिकॉज ग्रुप बी मध्ये आपल्याला कुठलेही 2 असाइनमेंट सांगितलेले आहेत. बट इफ टाइम परमिट्स, I will upload that 12th assignment also. We will see that assignment also. There is no harm in learning something extra. Okay. तर तो प्रोग्राम पण आपण करूया, जेणेकरून आपली चांगली प्रॅक्टिस होईल. अँड फॉरगेट अबाउट द राईटअप, बट येस, वी विल अपलोड द प्रोग्राम अँड आउटपुट हिअर. पण राईटअप आपल्याला जवळपास 14 यांचं करायचं आहे, फक्त 12th असाइनमेंटचं नाही करणार आपण. सर ते सगळं काउंट होणार आहे का? म्हणजे आम्ही कोड जरी सबमिट केला तरी राईटअप्सला म्हणजे मार्क्स असतील का? म्हणजे असं कोडला जास्त प्रायोरिटी का राईटअपला असं विचारते. नाही, दोन्ही यांना प्रायोरिटी आहे, बिकॉज कोड इज व्हॉट यू आर गोइंग टू अप्लाय. ठीक आहे, ऍप्लिकेशन इथून आपल्याला कळतं, पण जे काही तुम्ही आता जर इथं बघितलं, इज इट रीडेबल आहे काय? मग आता तुम्हाला काय करायचंय, राईटअप इज व्हॉट बेसिकली इट इज द थेरी पार्ट, की तुम्ही ते सगळं केलेलं आहे का, वाचलेलं आहे का, हे सगळं तुमचं एकदा ते झालं पाहिजे. कारण होते काय, आता बऱ्याच वेळा आपण लिहित नाही आणि वी डोंट नो की एक्झाम कशा होणार आहेत. आता आपण म्हणतोय की ते सगळे ऑनलाईन वगैरे आहे आणि तसंच कन्सिडर करून चाललोय, पण तुमच्या सगळ्यांचं नशीब जोरातच असेल तर त्याला कोण काय करणार ना नंतर. आणि समजा ऑफलाईन एक्झाम झाल्या तर इन दॅट केस यू मस्ट हॅव दॅट रायटिंग हॅबिट. तर वी हॅव टू ऑलवेज प्रिपेअर फॉर द वर्स्ट थिंग. मग त्याचं म्हणून आपण हे सगळं असं लिहिणार आहे, की जे काय असेल एम, ऑब्जेक्टिव्ह, आउटकम हे तुम्हाला दिलेलं असेल, हे पार्ट दिलेलं नसणार आहे. इथे तुम्हाला काय असेल, एक्सेप्शन हँडलिंग. मग एक्सेप्शन हँडलिंगचं काय काय राईटअप तुम्ही सर्च करणार आहात, बिकॉज जर आम्ही हे असं राईटअप दिलं, इफ यू गिव्ह यू राईटअप लाईक दिस, एव्हरीवन विल कॉपी सेम थिंग, नो वन विल रीड दिस. ठीक आहे, सो व्हॉट वी विल डू, वी विल गिव्ह यू सम पॉइंट्स. फॉर एक्झाम्पल, yes, like this. Suppose assignment number 3, vehicle. So the problem statement is there, objective is there, and what outcome will be of this program, that is there, and then points are given. So what you have to do is you have to write the write up as per your understanding. तर याच्यासाठी तुम्हाला अगोदर ते वाचावं लागणार आहे, तेव्हाच तुम्ही हे सगळं लिहू शकता. इट इज एक्सपेक्टेड की इथे तुम्ही थेरी पार्ट रीड करताय आणि लर्न करताय, आणि प्रोग्राम इज ऍप्लिकेशन ऑफ ऑल दिस थिअरी पार्ट. लक्षात येते सर? ये राइटअप्स दे दो ना सर, ताकि हम लिख पाए सर, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज्यादा घाई हो जाती है सर एग्जाम से पहले. ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी ये एक बार कंपाइल कर लेता हूँ सारे एक ही इसमें, एंड आई शेयर दैट सिंगल फाइल और अ सिंगल मेल टू यू ऑल, और आई विल शेयर दैट फोल्डर ऑन क्लासरूम इटसेल्फ, सो दैट यू कैन गेट एवरीवन, यू कैन हैव एक्सेस. और सर ये राइटअप में हर एक चीज लिखनी होती है सर, या फिर हम कुछ स्किप कर सकते हैं सर स्पेसिफिक पॉइंट? देखो कैसे होता है, इनहेरिटेंस है. ठीक है, तो इनहेरिटेंस के अभी क्या क्या हमने देखा है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस. ठीक है, व्हाट इज बेस क्लास, व्हाट इज डिराइव क्लास, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ. ठीक है, एक एग्जांपल उसका हम दे देंगे. देन अगेन वी हैव टू एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. और क्या होता है, तो उसमें पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड भी होता है. दे मेक सम डिफरेंस ना. अगर आपने किसी बेस क्लास में किसी वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर किया या प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया या फिर पब्लिक डिक्लेयर किया, तो आगे एक्सेस कैसे होता है उसके ऊपर चेंज होने वाला है, तो उसका टेबल यहाँ पे लिखना है. तो दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. सो जस्ट 2 to 3 पेजेस. ठीक आहे, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हॉट एव्हर इज गिवन हिअर, हे सगळं तुम्ही सोडून दिलं तर जे काही असेल, हे जे काही आहे अप टू कन्क्लुजन, फॉर दॅट 3 पेजेस इज सफिशियंट. म्हणजे तेवढ्याच्या डायग्राम्स काढा, तर जर तू डायग्रामच काढल्या डिफरंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटन्स, इफ यू ड्रॉ द डायग्राम्स, आता काही जण एका पेजवर 1 काढतील, एका पेजवर 4 काढतील, इट्स अप टू यू, बट दॅट इज अ कॉमन सेन्स थिंग की सगळ्यांनी थोडंसं व्यवस्थित ड्रॉ करायचं. अगदी एनलार्ज कॉपी नकोय आपल्याला 150%, किंवा अगदीच स्मॉल कॉपी नकोय अगदीच 50%. ते तेवढं थोडंसं व्यवस्थित हँडल करा. एनिथिंग एल्स? सर मतलब राइटअप में जो है सर, हम लोग एम, ऑब्जेक्टिव, आउटकम टाइप कर देंगे सर, और सिर्फ थ्योरी लिखेंगे सर, चलता है सर? यस, थ्योरी लिखना ही है. ओके सर.
ठीक है. See here, if you read this instruction, students are expected to complete write up as per the given points, write it on pages, scan it, create a PDF and then submit it. ठीक है. तो अभी यहाँ पे जो हमने सेक्शन किया है ग्रुप ए बी सी, ये किस लिए है? सारे प्रोग्राम सबमिशन के लिए. जब आपका राइटअप कंप्लीट होते जाएगा तो आई विल क्रिएट हियर वन मोर टॉपिक, राइटअप सबमिशन, एंड देयर इन आई विल क्रिएट ऑल 15 असाइनमेंट्स 1 2 3 4. फक्त नावं देऊन असं सेक्शन क्रिएट करतो मी आणि मग तिथे तुम्ही फक्त तुमच्या PDF फाईल अपलोड करायच्या राइटअपच्या. ओके सर. See, I'm trying to minimalize the work given to you, but again, the thing is, whatever is required, that I have to, accept from you people, that I have to get it from you people, that you have to submit, so that you will not be stuck anywhere. कुठल्याही लिगल याच्यात तुम्ही अडकणार नाही याची मला ती काळजी घ्यावी लागते, म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की हे सगळं तुम्हाला सबमिशन करणं गरजेचं आहे. Is this fine? Assignment, ठीक है, programs plus output, then submission part, फॉर्मॅट तुमच्या लक्षात आले, वर्ड फाईल आणि PDF फाईल. काय डाऊट आहेत का अजून? सर सर हमें कोई प्रोजेक्ट भी करना है सर पीपीएस लिए? यस, प्रोजेक्ट भी है आपको, and that you have to start earliest. यानी अभी अगर आपने ग्रुप बना लिया है तो अच्छी बात है. If you see this B section, so there has been a given a mini project. तो ये आपको इम्प्लीमेंट करना है. So what you can do is you can start preparing the database classes. याचं सगळं आता फॉर्म्युलेशन तुम्ही करून ठेवा. इम्प्लिमेंटेशन इफ यू सिट फॉर 3 to 4 hours इट कॅन बी डन. असं नाहीये की ते अवघड आहे खूप, बट यू हॅव टू सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन. मग त्याचं फक्त फॉर्म्युलेशन करा. स्टुडंट मॅनेजमेंट, सो व्हॉट ऑल क्लासेस विल बी देअर, व्हॉट ऑल फंक्शनॅलिटी विल बी देअर, हाऊ यू आर गोइंग टू इनहेरिट क्लासेस, हाऊ यू आर गोइंग, वेअर यू आर गोइंग टू यूज टेम्पलेट्स, फाइल्स. So it is not like this कि हे सगळं तुम्हाला you have to write this program right now only. You have to write this or start typing this program once you learn this files. कारण आपल्याला तो प्रोजेक्ट जो आहे that has to be consistent. Once I enter data of student, that has to be, it should remain there. हर बार एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, हर बार मुझे नया डेटा एंटर करना है, ऐसे नहीं है. एकदा एंटर केला की तो आपल्याकडे परमनंट राहिला पाहिजे. अँड फॉर दॅट वी हॅव टू यूज फाइल्स, फाइल हँडलिंग. सो आफ्टर 8 यू कॅन स्टार्ट टायपिंग युअर प्रोग्राम, किंवा यू कॅन स्टार्ट टायपिंग प्रोग्राम राईट नाउ ऑल्सो, बट यू कॅन जस्ट एक्सेप्ट अँड डिस्प्ले देअर ओनली. आणि एकदा हे झालं की मग डेटाबेसची फाईल एक तयार करा, तसंही चालेल. इट्स अप टू यू. ठीक आहे. तर तुमचा ग्रुप झालेले आहेत, त्याच्यानुसार तुम्ही एक एक ह्याच्यातलं सिलेक्ट करा आणि बघा कसं होतं. ग्रुप का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए सर? अलाउड स्ट्रेंथ? इसका आपको PDF मिला है क्या? सिलेबस का कॉपी मिला है आपको? सिलेबस मिला है सर. हाँ, so you just go through it once. All the instructions are given, and still if you have any queries, तो हम वो देख लेंगे. जैसे यहाँ पे लिखा है, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू चूज रियल टाइम एप्लीकेशन इन ग्रुप ऑफ 3 to 4 स्टूडेंट्स. असाइनमेंट का ये भी दिया है कि कितना करना है, कितने नहीं करना है, बट हम असाइनमेंट्स सारे के सारे कवर करेंगे, सो दैट कि एग्जाम में अगर कुछ आता है, कोई भी असाइनमेंट आता है, सपोज हमने जो स्किप किया है वही अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे, तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर. सो दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वर्स्ट एंड वी विल कवर ऑल द असाइनमेंट्स. ठीक है. ओके सर. गुड. तो
तो चलो आज ग्रुप सी जो है वो हम खत्म कर देते हैं, बिकॉज अभी क्लास में क्या क्या चल रहा है, क्लास में क्या क्या हुआ है इनहेरिटेंस के बाद? एक्सेप्शन हैंडलिंग और जेनरिक प्रोग्रामिंग अभी चल रहा है। अच्छा, वर्चुअल फंक्शन हुआ है। हाँ सर। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग कितना हुआ है? सर उसके वीडियोस ये थे, आज डाउट डिस्कशन हुआ था सर, वो अच्छा, पूरा हो सो गया सर। all of you, are you capable of writing program for this exception handling? Sir, what are the types of exceptions and all those things are not explained. Just try catch block and how it works. It is explained in that video. Okay, so maybe a couple of more videos will be uploaded आणि ते एकदा अपलोड झाले की मग आपण हे दोन्ही प्रोग्राम उरकून टाकू. आता आपण काय करूया, हे आज पिझ्झा जो आहे सेट ऑपरेशन तिकीट बुकिंग सिस्टीम पण आपण घेतलेलं आहे. हो सर, तुम्ही कसं करायचं ते एक्सप्लेन केलं, पण थोडंसं कन्फ्युजन आहे त्याच्यामध्ये पण. बरं ठीक आहे, कन्फ्युजनचा पार्ट आपण लास्टला ठेवूयात आणि ते सगळे डाऊट सॉल्व्हिंग करूयात. आता आपण ग्रुप बी मधली एक सेट ऑपरेशन्स जे आहेत हे झाले का तुमच्या डेटा स्ट्रक्चर मध्ये सेट ऑपरेशन्स? बरं ठीक आहे, ते सेट ऑपरेशन्स आपण आता घेऊयात. आणि ग्रुप सीच्या ह्या खूप सिम्पल आहेत, त्याच्यात काहीच म्हणजे नाहीच आहे. सो वी विल कव्हर दीज असाइनमेंट्स. लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ द assignment 13. Write a C++ program to print all repeated numbers with their frequency in an array in minimum time complexity. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. Okay, so the first program is repeated numbers. So can anyone tell me how can we write this program? Am I audible? Yes, sir. Okay, yes. Can anyone tell me? So repeated numbers in an array. First of all, we will do that. Okay, can anyone tell me sample input numbers? 1 to 50. 1 2 2 3 3 3. ठीक है. Suppose this is the array. These are the values. और to differentiate from index number, वो confusion निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं 11, 21, 21, 33, 44, 33. ठीक है. So first of all, what will be the output? Directly you tell me. Output काय असणार आहे याचं? ठीक है. Print all repeated numbers with their frequency in an array. Now repeated number is 11 repeated? No, sir. ठीक है. So we will not print that.
Then we have 21. Is it repeated? Yes, sir. So its frequency is 2. Then 33. Is it repeated? Yes, 2 times. Then we have 44. Is it repeated? No. So avoid it. So this will be our output. आता हे कसं करायचं? चलो और सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है. First of all, we will identify that how many times a given number is occurred or present in the given array. For example, if I say 33, ये नंबर कितनी बार आया है इस array में, वो कैसे ढूंढेंगे हम? इंडिविजुअली काउंट करेंगे. Iterating. ठीक है. तो फिर कैसे लिखूं मैं यहाँ पे? We have to start from which position? ठीक है. So Zero. for I is equals to 0 से स्टार्ट करेंगे. कहाँ तक जाएंगे? 5 less than 5. So less than 6. Less than 6. ठीक है. तो less than 6, right? So there are 6 numbers. So less than 6. Similarly, if it is n numbers are there, then I is less than n. I plus plus. And in that, what we will do? If I is equal to 30, no, If if A of I is equal to 33, count plus plus. A of I is equals to 33. ठीक है. Suppose that number is given in this. I'm calling this as a key. वेरिएबल. मैं उस वेरिएबल को नाम दे रहा हूँ की. तो जो भी की में वैल्यू है वो और A of I में जो वैल्यू है, if they are same, then what we are going to do? जैसे यहाँ पे ये और ये सेम है क्या? नहीं है. Then we go next. Second, are they same? No. Go next. Third, no. Go next. Fourth, yes, they are same. Then what we do? Count plus plus, right? So here I will write count plus plus. ठीक है. और ऐसे हमें लास्ट तक जाना है, बिकॉज वी कैनॉट ब्रेक हियर, बिकॉज वी नीड टू काउंट. आगे भी हो सकता है वो लास्ट तक कहीं पे भी. तो फिर से यहाँ पे नहीं है, so don't increment. यहाँ पे present है, इसलिए फिर से increment. So once this is done, what I can do? I can print value of count, right? Yes, no, काहीतरी बोला. Yes, sir. This is for only key. Now I have to do this for all the numbers. तो कैसे करेंगे? What data structure we have to use? कोई बता सकता है या फिर यहाँ पे जो प्रेजेंट है उनको बोलने को चांस दूंगा? Anyone want to try? Hash table, okay. और hash table Linked list. करेंगे. सर प्रायोरिटी क्यों कर सकते हैं ना सर? सिंपली वो ऑर्डर में रहेगा सर नंबर्स. अच्छा देखो, यहाँ पे हमें कम से कम फ्रीक्वेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम से कम चाहिए. चलो हैश टेबल भी निकाल देते हैं. फॉरगेट अबाउट हैश टेबल. सिंपल एरे से ही अगर मुझे करना है तो कैसे करेंगे? तो सिंपली सॉर्ट कर देंगे सर और फिर काउंट कर देंगे सर. अच्छा, सॉर्ट कर देंगे फिर काउंट कर देंगे, चलेगा? यस सर. तो उससे हाँ हाँ ठीक है, वो भी सही है कि सॉर्ट कर दो फिर उसके बाद काउंट कर दो. तो उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा? सर ओ ऑफ एन लगेगा सर उसके लिए, क्योंकि सॉर्टिंग ओ ऑफ एन का होता है ना सर. ओ एन लॉग इन से होता है सर सॉर्टिंग. नहीं, अगर आप इन में लॉग इन दो. कौन सा सॉर्ट बोल रहे हो? हेलो, ओ ऑफ लॉग इन से कैसे होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हुआ है क्या आपका क्लास में? तो लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी कब होती है? सर लॉग इन आएगा मर्ज सॉर्ट में होता है. अच्छा चलो, ओ ऑफ एन कब होता है?
hashing. When it transfer n times. when we yes iterate और transfer n times. ठीक है, n स्क्वायर कब होता है? फॉर लूप मध्ये अजून एक फॉर लूप असेल तर आपण n स्क्वायर म्हणतो, बरोबर. अब सॉर्ट करते वक्त हमें क्या करना होता है? वही करना होता है ना, सारी जगह पे फिर से विजिट करना होता है, तो उसका यानी फॉर लूप के अंदर फॉर लूप आएगा ही ना सॉर्टिंग के वक्त. ठीक है, तो n स्क्वायर तो वहीं पे हो गया और फिर से हमें वो काउंट भी करना है. अच्छा, थोडस असं वाटतंय की आपण n स्क्वेअर प्लस n होईल का मग? n स्क्वायर प्लस n पण कसं होईल मला सांग आता. सर n लॉग इन हो सकता है सर, n लॉग इन हो सकता है सर. Just a minute. सॉर्टिंग के बाद कुछ ये ऐसे दिखेगा. तो 11 है, ठीक है, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा. ये 11 है तो इसका काउंट 1 हो गया. नेक्स्ट वाला 11 है क्या? नहीं है, तो 11 का मैं स्टोर करूंगा कहीं पे. ठीक है, 11 का काउंट 1 है. उसके बाद 22 है, या फिर काउंट प्रिंट करूंगा ही नहीं. ठीक है, आई विल नॉट प्रिंट इट बिकॉज इट्स वैल्यू इज 1. नेक्स्ट इज नॉट 11, सो अगेन आई हैव टू चेक दैट एज अ or consider it as a next counting element 22. For example, मी इथे लिहितो counting element. So initially it will be a of 0 which is 11. ठीक है, a of 0 which is 11. तो काउंटिंग एलिमेंट कैसे करेंगे? a ऑफ 0 11 है, तो आगे का a ऑफ 1 11 है क्या? नहीं है. ठीक है, तो तभी हम काउंट भी चेक करते जाएंगे. काउंट अगर 0 रहेगा तो फिर हम आगे प्रिंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर काउंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी. आपको समझ में आ रहा है क्या? सपोज फॉर एग्जांपल हियर इनिशियली काउंट विल बी 0. ठीक है, जैसे ही कोई नंबर मिलता है तो काउंट हम इंक्रीमेंट करेंगे, तो तब वो 0 से 1 हो जाएगा, या फिर इनिशियली काउंट आप 1 ही रखो. ठीक है, a ऑफ 11 इज 1. नेक्स्ट गो टू सेकेंड पोजिशन, a ऑफ 1 which is 22. ठीक है, which is 22. is that element and counting element, are they same? No. ठीक है, in that case we will immediately check count. If it is 1 we will not print it, and whatever second element is there that we will consider as a counting element. Now next, a of 2 21 है. a of 2, are they same? Yes. So count again, इसके यहाँ पे 1 था, अब वो 2 हो जाएगा क्योंकि आगे भी वो प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट टाइम 33, are they same? No. तो immediately check count. If it is 2, then print it. And again reset count to 1, and counting element will be next element. Again go to next element. It is same as that of the counting element. Yes, increment count. Go to next element. Is it same as that of the counting element? No, it is 44 and it is 33. So immediately check count. Are they say is it 2? Yes. More than 1? Yes. Then print this. Reset count to 1 and take next value as counting element. And keep on. ऐसे कहाँ तक करना है? n तक करना है हमें. Is this okay? Yes, we will have to sort first in order to do this. But this second logic, have you got this? Yes, good. Otherwise, what we have to do is हर एक एलिमेंट का इंस्टेंस हमें लास्ट तक ढूंढना होगा.
फॉर एग्जाम्पल 11 है, ठीक है, तो 11 यहाँ पे कितनी बार आया है, ये एक फॉर लूप के साथ करो तो उसका हो जाएगा O ऑफ n। नेक्स्ट टाइम फिर से दूसरा जो है वो कितनी बार आया है वो चेक करो पूरे एरे में, तो उसका भी हो जाएगा O ऑफ n। ऐसे सबका एडिशन होगा, n इंटू जो भी नंबर्स है वो ही हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम कब लग रहा है ना, O ऑफ n स्क्वायर ही हो जाएगा ना वो भी। यहाँ पे तो एक्स्ट्रा है O ऑफ n स्क्वायर प्लस O ऑफ n। Are you getting or not what I am saying? हाँ? जब हम ये सब आपको इसका क्या स्क्रीनशॉट लिया है आपने, कुछ लिया है? आई एम गोइंग टू क्लियर दिस स्क्रीन। स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा म्हणजे तुम्हाला रेफर करायला जरा बरं पडेल। Did I clear this screen? Yes, sir. Okay. Now we have seen two different things. One, you sort and then you count. Or the second method is you count for each instance. Count for all numbers. So suppose there are 5 elements. तो in that case sorting का आ जाएगा O of n और count का O of n square और count का कितना आएगा O of n अलग से। लेकिन count for all numbers में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है वो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, थर्ड फोर्थ एंड लास्ट, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के साथ कंपेयर करेंगे। अगर है तो काउंट इंक्रीमेंट करके रखेंगे, एंड अगर काउंट उसका 2 है तो ही हम इमीडिएटली प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज लीव इट, देन यू गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो इन दिस केस द कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ, ये क्या हो गया O ऑफ, नहीं सॉर्टेड नहीं है। सपोज ये ऐसा कुछ तो है 11 22 11 33 22, तो 11 क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे 22 के साथ, 11 के साथ, 33 के साथ, 22 के साथ, ठीक है, यानी A ऑफ 0 कंपेयर करेंगे 1 2 3 4 के साथ। तो इन दिस केस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा O ऑफ, गलत, yes anyone, no, I'm just see सगळं केस नका कन्सिडर करू, what I'm telling you in this case I'm just comparing 11 with remaining all elements. How many elements are there? Okay, n minus 1 होगा ना, क्योंकि अच्छा ठीक है, तो n माइनस 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो है ही, तो हम फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फॉर लूप हम स्टार्ट करेंगे i इज इक्वल टू 1 से। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम और कितना हो जाएगा, और भी एक कम हो जाएगा, ये n माइनस 1 है तो नेक्स्ट टाइम इट विल बी O ऑफ n माइनस 2, नेक्स्ट टाइम और भी कम हो जाएगा, उसके बाद और भी कम हो जाएगा, एंड इट विल बी लास्ट टाइम, लास्ट के लिए वो कितना होगा O 1, राइट। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। कैन यू राइट प्रोग्राम फॉर दिस? कैन यू राइट? चलो यस। मैं एक का लिख के यहाँ पे दिखाता हूँ। ये डायग्राम याद रखो सब लोग।
तो हमें क्या करना है, ये हमारा एरे है ए 0 1 2 3 4 11 22 33 22 33. Now this first element I have to compare with all these elements. So I will say, okay, so initially when I is 0, J will start from, suppose A of 0 मुझे कंपेयर करना है, तो वो किसके साथ कंपेयर होगा? 1. उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, करेक्ट. नेक्स्ट टाइम A of 0 तो कंपेयर हो गया है, अभी A of 1 हमें कंपेयर करना है, तो फिर से A of 1, I जब 1 होगा तो J जो आगे का कंपैरिजन है वो कहां से कहां तक होगा? 2 से 4. 2 से 4, 3 4, करेक्ट. नेक्स्ट टाइम जब ये वाला एलिमेंट होगा तो कंपैरिजन किसके साथ होगा? 3 4. लास्ट टाइम 3 कंपैरिजन विल बी 4 ओनली. ये समझ में आ गया क्या जो मैंने ये लिखा है? Yes, sir. गुड. नाउ वी हैव टू फॉर्मुलेट दिस ओनली. जैसे हमें फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करना है, उसके बाद सेकंड एलिमेंट कंपेयर करना है, उसके बाद थर्ड एलिमेंट कंपेयर करना है, उसके बाद यस, ये बोला पटकर नहीं, जीरोथ एलिमेंट कंपेयर किया, उसके बाद फर्स्ट रिमेनिंग एलिमेंट, सेकेंड विथ रिमेनिंग एलिमेंट, थर्ड विथ रिमेनिंग एलिमेंट, उसके बाद आगे जाना है क्या? फोर्थ नहीं, क्योंकि आगे किसी कंपैरिजन का कोई जरूरत ही नहीं है. देयरफॉर we will start from this position and we will go up to this position only. So for that we can see here also 0 1 2 and 3. So I is equals to 0, I is less than, I want in terms of n. n minus 1. N minus Absolutely. n minus 1 I प्लस प्लस. अब ऐसे करते वक्त हमें क्या क्या करना है? सबसे पहले तो किसके साथ कंपेयर करना है? ये जीरोथ एलिमेंट आगे के सारे एलिमेंट के साथ. तो फिर यहाँ पे J कहां से स्टार्ट होगा? देखो 0 है तो J कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से. जब I 1 है तो J कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से. So can you establish a relation among these? Correct, absolutely. I plus 1 और कहां तक जाएगा J? J is less than N. very nice. आणि J प्लस प्लस. ठीक आहे. आता याच्यात आपण काय करणार आहे? If A of I is equals to what? A of J. वेरी गुड. A of J. ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे? काउंट प्लस प्लस. काउंट प्लस प्लस. ठीक है. और जैसे ये खत्म होगा, ठीक है, प्रिंट कब करेंगे हम? ऐसे ही बोलो, डोंट टेल मी इन प्रोग्रामिंग कहाँ पे करना है, ऐसे ही लॉजिकली बोलो. हम प्रिंट कब करेंगे? सर जब हम एंड तक पहुंच जाएंगे सर. हाँ, अब यहाँ जब फॉर लूप खत्म हो रहा है तब हम एंड तक जा रहे हैं, सही है. तो यहाँ पे मैं Yes, काउंट sir. प्रिंट कर दूं क्या? नहीं, हमारा है ना. नहीं सर, पर repeated है. वन टाइम्स प्रिंट हो जाए. हाँ, अगर रिपीटेड है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे? इफ काउंट इज ग्रेटर देन 1, इन दैट केस ओनली वी विल प्रिंट. क्या क्या प्रिंट करेंगे? A of I. ठीक है, A of I और उसका फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी कहाँ से पता चलेगा? काउंट से। सर हमें हर बार काउंट 0 भी करना पड़ेगा सर इनिशियलाइज? हाँ, तो इसीलिए ठीक है, ऐसे ये हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखते हैं एक बार हम एग्जीक्यूट करके कैसे हो रहा है। इसीलिए जो मैंने जगह छोड़ा है वहां पे। अब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सगळ्यांचं लक्ष आहे का? से येस नो ऑल ऑफ यू। येस सर. Yes, sir. येस सर. बाकीच्यांचं? येस सर. येस सर. Yes, sir. येस. Okay, great. So let's start. Initially, a of I is 0, j is 1, count is, आपल्याला काउंट कुठेतरी समजा मी इथे केलं, काउंट मी इथे इनिशियलाइज केला, कितीला? 0 ला करू का 1 ला करू? 0 कर दू? बरं, 0 का 1 का कोणी सांगू शकेल का? 0 जो म्हणतोय तो सांगू शकेल का 0 का, किंवा 1 जो म्हणतोय तो सांगू शकेल का? बरोबर, तो आपण चेक करायला घेतलाय म्हणजे तो तिथे आहेच ना, मग पुढचा जो दिसेल तो सेकंडच असणार आहे. दॅट्स वाय इन्स्टेड ऑफ 0 लेट्स मेक इट 1. बरोबर, मग काउंट आहे इनिशियली 1. सो ते कुठेतरी आता आपण काउंट 1 इनिशियली आय काय असणार आहे? 0. तो ए ऑफ आय काय असणार आहे? ओके, I is 0 here, we are here. 0 is less than n minus 1. True आहे का कंडिशन? चला बोला, पटापट बोला, आपल्याला वेळ नाही. येस, मग तो आत येईल आणि j ची व्हॅल्यू काय होईल? I plus 1. I is 0, 0 plus 1 is 1. तो इथे आला. बरोबर, j is 1. 1 is less than n. Yes, so it will come inside a of I and a of j. What is a of I? A of 0, that means 11. And a of j, j ची व्हॅल्यू काय? 1. म्हणजे a of 1, 22. करेक्ट. आर दे सेम? नो. त्याच्यामुळे काउंट इन्क्रीमेंट होणार नाही, परत फॉर लूप एक्झिक्यूट होईल. j will be 2. 2 is less than n. Yes, again a of I, a of j. A of I, a of j, are they same? No. Again increment, condition true, j is less than n, are they same? No. J will be 4. 4 is less than n. Yes, so it will compare that. Last element, are they same? No. Next time j will be 5. Condition will be false. Okay, j is less than n. No, condition false, so it will come out of the loop. आणि काउंट तो चेक करेल. काउंट इज इनिशियली 1. राइट नाउ ऑल्सो इट इज 1 ओनली. 1 इज ग्रेटर देन 1? नो, तो वो प्रिंट नहीं करेगा. और यहां से फिर वो क्या करेगा? आई इंक्रीमेंट करेगा. आई विल बी 1. नाउ येस, दॅट इज ऑल्सो ट्रू. आता काउंट आपण बरं, आपण तरी ते एकदा बघूयात गरज कशी येते आणि मग त्याच्यानुसार चेंज करूयात. सो नेक्स्ट टाइम अगेन काउंट इज 1 ओनली. पर समझा यहाँ पे 11 जो है वो अगर 4 बार होता तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाती? इंस्टेड ऑफ 1 वो 4 हो जाती. ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब हम काउंट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या है? काउंट की अभी भी 4 ही है. Wherein जब मैं 22 का इंस्टेंस काउंट कर रहा हूं, इट शुड बी इनिशियलाइज टू 1. हाँ, तो फॉर लूप के अंदर हमें उसका काउंट इक्वल्स टू 1 करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं. लेकिन अभी दिक्कत यहाँ पे ये भी है, हमें कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए. तो अभी किसने बोला था वो? प्रणव ना? काय म्हणाला होतास तू? कुठे करायचं ते? येस, अपन आता इथे जर काउंट इज इक्वल टू 1 केला तो दिक्कत क्या है? हर बार जब वो नेक्स्ट एलिमेंट को जा रहा है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे नेक्स्ट एलिमेंट को जब जा रहा है हर बार वो काउंट 1 करेगा.
अब जरूरी है क्या? सपोज मेरे एलिमेंट ऐसे है 11, 22, 34 और ऐसा है, तो अभी 11 है, एक ही बार है, तो फिर से काउंट 1 करने की जरूरत है क्या? नहीं। 22 दो बार है, तो यस, तभी हम काउंट 1 करेंगे। समझ में आ रहा है? जब काउंट चेंज हो रहा है, काउंट बढ़ रहा है, तभी हम काउंट की वैल्यू 1 करेंगे, इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और भी कम हो जाएगी। तो यहीं पे हम इफ लूप में काउंट प्रिंट करने के बाद उसकी वैल्यू 1 कर देंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो ये प्रोग्राम आप कर सकते हो अभी। ओके, और किसी को कुछ सजेशंस देने हैं इस प्रोग्राम में? नो सर. ओके, सो कैन यू राइट दिस लॉजिक नाउ? चला पटकन लिहा बघू मग. I'll give you 5 minutes. सर एक डाउट था सर। बोलिए। सर अगर हमारा एरे ऐसा है सर 11 22 11 20 11 22, तो सर वो 11 के लिए 3 बार ढूंढेगा ना सर, तो 11 के लिए 3 अलग अलग वैल्यू दे देगा सर काउंट की। यस, ओके, चलो मिल गया और एक मॉडिफिकेशन। चलो ये एक बार लिखो तो सही, और एक बार इसमें चेंज होने वाला है। एक बार नहीं, 2 बार चेंज होगा। ये लिख दिया सर। अच्छा, शेयर करो। सर फोन से ऐसा शेयर करूं? हो कर कर। सर सेव नहीं हुआ सर। ठीक है, और किसी ने लिखा है? हाँ हाँ, हेलो कर दो। बर, आता जसं संगीतने सांगितलं तसं वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज टाकून बघू. 11 22 11 22 11. काय होतंय? बरोबर. मग आता याच्यावर कसं सोल्युशन काढायचं? टू एक एक गोष्टीवर आपण सोल्युशन फाइंड आउट करत जाऊ. हम्म? सर हम मैपिंग कर देते हैं सर, हम मैप कर देंगे और 11 की वैल्यू ट्रू कर देंगे सर, तो हम स्टार्टिंग में बस चेक कर लेंगे सर कि ये ट्रू है कि नहीं है इसका मैपिंग। और कुछ?
अजून काही आयडिया येतात का कोणाला? सर हे ऍक्च्युली हे असं का होतंय ते नाही कळत आहे. ओके, याच्यात हे असं का होते ते आपण सांगूया मग अगोदर आणि मग पुढे जाऊया. हो हो. ओके, आता याच्यामध्ये होते काय, when we have 11, 22, 11, 22, 11. So now we have started comparing 11. So is it present at the second location? No. Is it present at the A of 2 location? Count incremental. A of 3? येस सर. No. A of 4? Yes. So count is 3. So it will print 11 present 3 times. Now next time it will go to the next element 22 and it will check that element with remaining element. So 22. Okay, again here count will be initialized to 0. Once after printing, count will be 1. So 22 A of 2, are they same? No. 22 A of 3, are they same? Okay. 22 A of 4, are they same? So count is 2. So it will print that also. 22 is present 2 times. Once we print this, again count will be initialized to 1. And again it will start with the next element. Is it same? No. But is it same as that of A of 4? Yes. So count will be 2. And hence it will print तो इसके ऊपर हमें सॉल्यूशन चाहिए. So we can define a boolean array like visited आणि मग त्याच्यामध्ये जर जे visited असतील त्यांना 1 करायचं. मग ऍक्च्युअल कंडिशन मध्ये चेक टाकायचं की इफ इट इज नॉट visited then only we will iterate through the complete loop like that. बर, ठीक आहे. याच्यावर आहे ना मी तुम्हाला एक 2-3 गोष्टीचं इनपुट देतो. यू गिव्ह अ थॉट ऑन दिस अँड देन यू लेट मी नो दी सोल्युशन. तुम्ही जर त्या आपल्या टेलिग्रामच्या ग्रुपवर जरी पोस्ट करत राहिलं तरी चालेल. सगळ्यांचं तेवढंच विचार करता याची हे होईल, विचार करतील सगळ्यांना. ओके, वन थिंग इज हॅश फंक्शन. कॅन वी यूज हॅश फंक्शन हियर? कसं यूज करता येईल? यस यस, ओके फाइन. हाउ? सर हम है ना वो जो वैल्यू इनपुट कर रहे हैं ना तुरंत इनपुट के टाइम पे हम सिंपली नहीं क्या सर उनके मैप वैल्यूज को इंक्रीमेंट कर देंगे और फिर वो हैश मैप में देखेंगे सर जहाँ पे मल्टी 1 से बड़ी वैल्यू होगी उन सबको प्रिंट कर देंगे सर. नहीं है. अभी सपोज ये मेरे एरे नहीं है, अब ये मुझे कहीं पे हैशिंग में डालना पड़ेगा ना, हैश टेबल में. यस सर. की एंड एलिमेंट्स, राइट? यस सर. हाँ, अब 11 है तो 11 में कैसे डालूंगा यहाँ पे? सर हम इनबिल्ट मैप यूज कर सकते हैं ना सर अगर चाहे तो. नहीं, हमें वो इनबिल्ट वैसे कुछ किसी का हेल्प नहीं लेना है, इसलिए तो ये सब कर रहे हैं. मैप्स यूज करके हम बाद में कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी विदाउट मैप कैसे करेंगे? फिर बकेट साइज 11 बकेट साइज 2 का रखेंगे और अगर हमारे पास यही 5 एलिमेंट है सर तो फिर हम मॉड 11 कर देंगे सर. अच्छा, मॉड but 11 what, again my next question is, what if numbers are like this: 1, 11, 111, चेनिंग कर देंगे सर. 5 times 2. Yes. सर हम चेनिंग यूज कर सकते हैं सर मैप हैश फंक्शन.
मतलब सर हम अगर सेम पोजीशन ले रहा है सर मल्टीपल के तो हम चेनिंग कर देंगे सर। अच्छा, कोई ऐसा फंक्शन है क्या कि जिसकी वजह से यूनिक वैल्यू मिलेगा? मॉड्यूलस फंक्शन है सर. मॉड्युलस नाही, कसं मॉड्युलस में तर भरपूर येते ना से. डिव्हिजननी पण भरपूर येतील ना, म्हणजे आता 15 मिड स्क्वेअर हॅशिंग. आणि काय बोललं, 15 12, इसका डिवीजन भी सेम ही आएगा ना, तो नंबर कैसे वो सेम होगा? सर मिड स्क्वेअरिंग. कसं करणार? स्क्वेअर करून मिडल पार्ट ॲज अ की म्हणून हे टाकणार म्हणजे बरं, पण एलिमेंट्स. स्क्वेअरिंगने आपल्याला युनिक व्हॅल्यू मिळणार आहेत का? चेक करावं लागेल. बर, ठीक आहे. तुम्ही चेक करा. आणि मी थोडंसं असंही म्हणेन की इट इज नॉट नेसेसरी दॅट यू ऑलवेज थिंक ऑफ लाईक दिस ओनली हॅशिंग. जसं तो मॅप म्हणतोय तसं मॅपच्या ऐवजी जर आपण असं काही घेऊ शकू का, म्हणजे इथे 0 1 2 3 4 असं फक्त घेण्यापेक्षा कॅन यू टेक लाईक दिस ऑल्सो 0 1 2 3 4 आणि तो आलेला नंबर मग याच्यात कुठेतरी टाकायचा, इथे किंवा इथे किंवा इथे, परत त्या ठिकाणी आला की कोलिजन झालं. ठीक आहे, ठीक आहे, ओके. आय गिव्ह यू सम टाइम. या गोष्टींवर सगळे विचार करा आणि आपण याचं परत एकदा आपण घेऊया. ठीक आहे, आता आपण फक्त थोडस पुढच्या प्रॉब्लेम स्टेटमेंटकडे वळूया. तुम्हाला प्रॉब्लेम स्टेटमेंट तर कळलंय ना हे, आणि याचे मल्टिपल व्हॉट वी कॅन से डिरेक्शन्स की कसं आपण करू शकतो सॉल्व्ह. गुड. येस सर. नाव तुमचं थॉट प्रोसेस चालू दे आणि मला बघू दे काय होते कसं होते, आणि आपण तसं नंतर त्याचं सॉल्व्ह करू. मुव्हिंग टू दी नेक्स्ट प्रॉब्लेम स्टेटमेंट, ज्याच्यामध्ये आपल्याला अगदी सिंपल वाले घेऊ. अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स आणि स्पेशल कॅरेक्टर्स फाइंड आउट करायचे. कसं करणार? बरोबर. पण आस्की टेबल मग मी सगळ्याच्या सगळं मेमोराईज करू का? कसं करायचं आपल्याला? आस्की टेबल काढ, गुगल करून ते शेअर कर, हे स्टॉप कर किंवा थांब मी कर, मी कर. Okay, so this is the ASCII table. So now here also we have to consider only decimal values. आता कुठलेही समजा तुम्ही हे म्हणताय याच्यात डिजिट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 48. 48, राइट. हियर 48 से स्टार्ट हो रहा है और 57 पे जाता है. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. बघू एकदा चेक कर फक्त ते. Yes, go back. Yes, so digits from 48 to 57. Next, uppercase. 65. 9. Uppercase starts from 65 and up to 90. Next, lowercase. 97. 97 to 122. Special symbols.
स्पेशल सिंबल्स रैंडम है ना सर? हम्म स्पेशल सिंबल्स तो बाकी वो सब है ना सर, डिजिट और कैरेक्टर्स नहीं है? लेकिन 32 से स्टार्ट, ठीक है, स्पेस से लेके वी कैन गो अप टू 127 या फिर 126. Out of that, if we exclude these said values, digits, uppercase, lowercase, everything will be special characters, right? या फिर Yes, sir. स्पेशल कैरेक्टर का रेंज भी यहाँ पे है ना, 33 से लेके you can say 47, then 58 to 64, 91 to 96. So these three, 123, 126. ठीक, go to that. Sir, Okay, so these are the seed values, ASCII values. So what we have to do, we have to accept one character, CH, CIN, TH, and how do we check this, the ASCII value of this CH? कसं चेक करणार ASCII व्हॅल्यू त्याची? टाइप कास्टिंग. So type casting, how do we convert this character into integer? ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए एक इंटीजर वेरिएबल i. i इज इक्वल्स टू, ये जो कैरेक्टर है वो मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर में, इसीलिए मैं उसे कन्वर्ट करूंगा इंटीजर. तो दिस इज टाइप कास्टिंग. तो जैसे हम कास्टिंग करते हैं कि किसी एक का शेप लेना है, किसी एक चीज का हमें शेप चाहिए, तो हम उसे मोल्ड करते हैं, ठीक है, मेल्ट करते हैं और उस मोल्ड में हम डालते हैं, जो कास्टिंग होता है. तो वैसे ही यहाँ पे character is having character value. When we convert it into integer, it is converted into integer value. So if it is capital A, it will be converted into 65 and will be stored into I. Now, after this, once we do this type casting, we have to check if I is in between 47 to 57. We will say that this is digit. If it is in between this range, it is uppercase letter, lowercase, special symbol. काय डाऊट याच्यात? हॅलो? नो सर. नाही. बट आता मला फक्त असं सांगा, इफ इथे काय, समजा मी डिजिटचा कोड लिहिलाय, whether it is digit or not, then I will print here, yes, this is digit. पुढे काय करू? Again, should I write if? Uppercase ची कंडिशन. ब्रेक कर देंगे. हा, ब्रेक इफ मध्ये होतं का? ब्रेक कुठे होतं? लूप्स में होता है सर ब्रेक. Yes, इटरेटिव और स्विच केस में. तो यहाँ पे तो वो पॉसिबल नहीं है. फिर अच्छा, मैं अगर ऐसे लिखूं तो क्या दिक्कत है? इसके बाद फिर से इफ लोअर केस का कंडीशन अगर है तो वो प्रिंट करो. उसके बाद फिर से इफ जो भी है स्पेशल कैरेक्टर अगर वो है तो वो प्रिंट करो. ऐसे लिखो तो चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हेलो? सर स्पेशल कैरेक्टर में शायद प्रॉब्लम होगा सर, क्योंकि अगर हमने डिजिट लिया है सर तो फिर डिजिट का वैल्यू, ASCII वैल्यू 48 से स्टार्ट होगा ना सर, तो वो स्पेशल कैरेक्टर के पहले उसको सेटिस्फाई कर देगा ना सर. वो अच्छा, तो वो कंडीशन ठीक से लिखना पड़ेगा ना, और एंड ऑपरेटर यूज करके. हाँ ये सर. तो और एंड ऑपरेटर सबको यूज करना आता है ना? डबल एंड डबल Yes, और sir. लॉजिकल एंड लॉजिकल और Yes, sir. बोला रे बाकी से. अच्छा ठीक है. Yes, sir. तो मैंने अभी ऐसे लिखा है, इफ डिजिट देन प्रिंट डिजिट, इफ अपर केस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन प्रिंट दैट गिवन कैरेक्टर इज अपर केस, इफ लोअर केस इज कंडीशन सेटिस्फाइड देन प्रिंट लोअर केस, इफ स्पेशल कैरेक्टर्स कंडीशन इज सेटिस्फाइड प्रिंट स्पेशल केस. हे असं चालेल का एका खाली एक 4 इफ? एलसीफ यूज कर लेते हैं सर, अच्छा रहेगा. अच्छा ठीक है, चलो एल्स इफ यूज करते हैं.
ठीक है, तो एल्स इफ से क्या फर्क पड़ने वाला है? अनुराग किंवा कोण, आकांक्षा? सुमित आहेत काय, सगळे प्रेझेंट आहेत का? लॉग इन. कनक? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. चला बोला कोणीतरी. कनक? अरे मी हे विचारतोय की हे एल्स इफ लिहिल्याने काय फरक पडणार आहे? सर सगळं एकत्र चेक नाही होणार, म्हणजे कंडिशन वाईज चेक होईल. जर एल्स नाही केलं तर सगळंच एक्झिक्यूट होईल. येस, सगळं स्टेप चेक करत बसेल. आता या केसमध्ये जर डिजिट असेल तर बाकी सगळं एल्स इफ मध्ये असल्यामुळे तो फक्त एवढं जर प्रिंट झालं तर तो बाकीचे कंडिशन चेकच करणार नाही. सो इट विल सेव्ह आवर टाइम. सो इन ऑर्डर टू सेव्ह टाइम वी आर रायटिंग दिस प्रोग्राम. बरं, याच्यात कोणाला काही डाऊट? सर हमने अगर पहले 3 अगर टेस्ट कर लिया सर तो फिर हाँ। लास्ट में करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना सर, नहीं, क्योंकि लास्ट का सिर्फ नहीं, बाकी और भी है ना उसमें, जैसे हमने देखा यहाँ पे. नल, स्टार्ट ऑफ हेडिंग, स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, एंड ऑफ टेक्स्ट, वैसे और भी है ना कैरेक्टर्स. जैसे टैब है, टैब स्पेशल कैरेक्टर में नहीं आता ना, तो इसीलिए वो हमने सिलेक्टेड कंडीशन. हम इनपुट नहीं कर पाते सर. हाँ, नथिंग सर. ओके. अभी आप है ना सीन कर रहे हो, इसीलिए जो कैरेक्टर आप टाइप कर सकते हो वही एंटर कर सकते हो. बट इफ यू ट्राई समथिंग एल्स लाइक गेट CHE या फिर गेट CH या फिर गेट कैर, तो इसमें क्या होता है, आप जैसे ही कोई भी बटन प्रेस करते हो, इवन इफ यू प्रेस स्पेस इट विल एक्सेप्ट इट एज अ कैरेक्टर. इफ यू प्रेस any key, in fact you press any key, it will consider it as a character and it will accept it. ठीक है, आता आपण फक्त सीन वापरतोय म्हणून दॅट इज फाइन. अदरवाइज अगर आप गेट कैर करते हो या फिर गेट CHE करते हो, गेट CH करते हो, तो इट विल एक्सेप्ट सिंपल की स्ट्रोक एज अ, इवन इफ यू प्रेस कॅप्स लॉक किंवा टॅब तरी तो कन्सिडर करेल. येते लक्षात? यस सर. ओके, ठीक आहे. आपण मग पुढचा प्रोग्राम घ्यायचा की बास आजच्या पुरतं एवढं? सर इसके लिए भी इनबिल्ट फंक्शंस होंगे ना सर? हाँ, होते हैं. अच्छा, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज के लिए, लेकिन एक चीज अगर आपको पॉसिबल है, if possible you go for this program. Write a program to sort n names in alphabetical order. ठीक है, तो इसके लिए एक हिंट देता हूं मैं. strcmp नाम का एक फंक्शन है which compares two different strings. सुना है आपने कभी? नो सर. अच्छा, ठीक है, सब लोग इसके ऊपर गूगल करेंगे. strcmp रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू, और वो इंटीजर कौन सी? -1 -101. यस, तो वो कब कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है ये आप एक बार, नहीं -1 भी नहीं, इंटीजर करता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड 0. सर लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, 0 सर एग्जैक्ट फॉर सेम स्ट्रिंग्स. ओके, हाँ, तो फिर वो 0 कब रिटर्न करता है, -1 कब रिटर्न करता है, 1 कब रिटर्न करता है, ये आप देखो. strcmp का एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो देखो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा, मैं हूं ना. ठीक है, शुड वी सर हियर देन? सर इनके लिए हम कुछ और भी चीजें सर, और भी कोई मतलब तरीका अगर चाहिए तो सर, क्या क्या? और सॉर्ट करने के लिए सर, ये नेम सॉर्ट करने के लिए हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं सर strcmp के अलावा? यस, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू दैट. जिनको Okay, नहीं आता है उनके लिए मैंने एक वो ये दे दिया हिंट. ठीक है, ओके, विल स्टॉप हियर. थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन. इफ यू हैव एनी डाउट यू स्टे बैक.
Otherwise, you may leave.